એ બોલશે તો પછી એમાં પાછું ભેગોવડું થઈ જશે. તમે જુદું જુદું સાંભળશો તો પછી તમારું ચિત્તભ્રમ થશે. ખ્યાલ આવે? એ કુંભમાં જઈને આવ્યા છે એટલે પાછું એ બધું બીજું લાવ્યા છે એટલે કુંભમાં અહીંથી અધિક હતું કે નહીં? ના પ્રભુ, અહીંયા અધિક જે છે કુંભમાં અધિક इसलिए कुंभ નથી. में गए. કુંભમાં અધિક છે જ નહીં. ત્યાં બી इनको कुंभ का एड्रेस आपने तो नहीं दिया होगा. हमने नहीं दिया. वो हमको कह के गए कि हम इससे भी ऊपर जाते हैं. નહીં. इससे तो આનાથી તો ઉપર કઈ છે જ નહીં. મહાચિદાકાશ ઉપર કે મહાચિદાકાશ વિના બીજું કંઈ છે જ નહીં. મહાચિદાકાશમાં મહાચિદાકાશ જ છે અને બીજું કંઈ છે જ નહીં ને બીજું કંઈ થતું નથી. ક્લિયર નહીં? એવી રીતે જુદું જુદું ના સંભળાય, એકદમ ક્લિયર થઈ જવું પડે. હવે અમે એક જ ક્લિયર કરીએ કે તમારે એક સત્ય તો સ્વીકારવું પડશે કે એક પરમ સત્ય છે અને આ બધું છે એ પરમ સત્ય બધે જ છે અને બધું એ જ છે અને બધું એ જ બધે જ હોલ એન્ડ સોલ છે. આમાં જે કંઈ કરતા અર્થ તમે કહો અથવા શરૂઆતમાં કહો જેમ કે સૂર્યનો દાખલો લે આપણે તો સૂર્ય આખા જગતનો આત્મા છે, આખા જગતનું તેજ જ્યોતિ પ્રકાશ છે, આખા જગતનું જીવન છે, પ્રાણ અને આખા જગતની શક્તિ છે અને આખા જગતનું સર્વસ્વ છે. જો સૂર્ય ન હોય તો આ પૃથ્વી પરનું જીવન કોઈ કે કાંઈ ન હોય છે. તો એવી રીતે છે. હવે એ જે છે તો એને આપણે મહાચિદાકાશ પરમાકાશ કહીએ છીએ. મહાચૈતન્ય આકાશ પરમાકાશ. કારણ કે આ જે ભૌતિક આકાશ દેખાય છે એ વાસ્તવમાં મહાચિદાકાશ છે. એ જ મહાચિદાકાશ છે. એ જ આ બધા રૂપે પોતે દેખાઈ રહ્યું છે. નહીં કે જેમ અનંત મહાસાગર છે એનું અનંત જળ છે એ બધું જળ જ છે, આખું જળ એકલું જળ જ છે. એક રસ ને ઘન ને બધું સમાન ને નિરાકાર અને જળ જ પોતામાં ચક્રી તરંગ ફીણ પરપોટા રૂપે દેખાય છે પણ વાસ્તવમાં જળ જ છે. એમ મહાચૈતન્ય છે મહાચિદાકાશ એ જ પોતામાં આ બધા રૂપે જણાઈ રહ્યું છે, દેખાઈ રહ્યું છે પણ વાસ્તવમાં એ જ છે મહાચિદાકાશ. જે મહાસાગર જ છે બીજું કાંઈ નથી, એ મહાચિદાકાશ જ છે બીજું કાંઈ નથી. આપણે આવી ગયા ક્લિયર? એ પહેલાં તો એકદમ આપણે પરમ સત્યમાં આવીએ, પરમ તત્વમાં. તો પરમ તત્વ મહાચિદાકાશ પરમાકાશ છે, પૂર્ણ બ્રહ્મ. જેને તમે ભગવાન કહો, પ્રભુ કહો, ઈશ્વર કહો તોય વાંધો નહીં. અને સચ્ચિદ આનંદ કહો, સત્ય ચૈતન્ય આનંદ કહો, બધે એક જ સત્તા છે. બરાબર છે ને? એ જ ચૈતન્ય છે ને એ જ આનંદ છે, એ પૂર્ણ છે ને એ સમાન છે ને નિરંજન નિરાકાર નિર્વિકાર છે. એની અંદર કોઈ ભેદ નથી, સદા એકરૂપ, ઓલ ઇઝ વન, બધું એક જ તત્વ છે. બરાબર છે? હવે આપણે અહીંયા આવી જઈએ. એ જ આ બધું થઈ રહ્યું છે ને, એ જ બધું કરી રહ્યું છે ને, એટલે આપણે એમાં છીએ માટે આપણે એ જ છીએ. બધું એમાં છે માટે બધું એ જ છે. સીધું નથી? अभी इनकी ये जैसे जान रहे वैसे उनको बता रहे हैं. हम ये ऐसे नहीं हैं फिर भी वो ऐसे जान रहे इसलिए ऐसे बता रहे हैं. તમારી રીતે અમે બતાવી રહ્યા છો, અમારી રીતે નહીં. અમે મહાચિદાકાશ છીએ, અમે આ નથી, અથવા આ બધું નથી. તમે એમ કહો કઈ રીતે? यदि आप पूछेंगे, वो पूछेंगे कि कैसे आप भी सबके जैसे हैं तो आप कैसे महाचिदाकाश है? तो हम आपको कैसे कहेंगे? बोलो, आप प्रूफ क्या देंगे उसका? उसका आप क्राइटेरिया क्या देंगे? वो पूछेंगे कि आप कैसे महाचिदाकाश है? हम ये हैं, ये सब अलग अलग है, ये सब जो है वही है और आप ही महाचिदाकाश कैसे हैं? तो आप उसको मूल मुख्य लक्षण क्या बताएंगे उसको? पूर्ण शांति सेल्फ. वैसा कहेंगे कि आपकी जो पूर्ण शांति है वो उसका प्रूफ है और ये सब मैं देह हूँ करके हैं इसलिए એટલે બધા ગુસ્સા ખાય છે. અને તમે જાણો કે તમે આત્મા છો તો તમારે પૂર્ણ શાંતિ જ છે. आप भी वही है, आप भी देह नहीं है. यदि हम भी माने कि हम देह हैं तो हमको भी अशांति होगी और हम जानेंगे कि हम आत्मा है तो हमको पूर्ण शांति है. तो आप भी जानो कि आप आत्मा है तो आपको पूर्ण. હવે જો પરમ સત્ય જ છે, પરમ ચૈતન્ય, પરમ આનંદ, પરમ તત્વ જ છે, બીજું કંઈ નથી. મને મહાચિદાકાશ એક જ. બરાબર છે? મહાચૈતન્યાકાશ, પરમાકાશ, જે કહો પૂર્ણ બ્રહ્મ કહો. બરાબર. તો પછી આ બધું એ જ છે પોતામાં પોતે, અલગ બીજું કોઈ નથી, અલગ બીજું કાંઈ નથી. તો આપણે એમાં છીએ, આ બધું એમાં છે માટે આપણે ને આ બધું એ જ છીએ અને આ બીજા નથી. આપણે
એ જુદું છે ને આપણે બીજા છીએ, એ ભેદ ભ્રમ કાઢી નાખો. એ એક જ છે અને બધું એ જ છે. તો પછી આપણે એવો ભાગભેદ કંઈ એવું લાગતું હોય કે આ હું છું ને આ બધું છે અને અનેકને જુદું જુદું છે, એ કાઢી નાખો. આ બધું એ એક જ છે. એ ક્લિયર થઈ જાય. તમે અહીંથી જોશો તો તમારા પ્રશ્નોનો કદી અંત નહીં આવે, પાર નહીં આવે કે હું આ છું. मैं ये हूँ करके मैं ये देह हूँ, तो आपका प्रश्न का अंत नहीं आएगा. और आप जान लेंगे कि केवल महाचिदाकाश है, सदा एक रूप ऑल इज वन. तो आपको कोई प्रश्न ही नहीं होगा. અહીં અત્યારે તમે પ્રશ્ન રહિત થઈ જશો. जैसे ही आप ऐसा ऐसा आपको भान होगा कि ये सब कुछ, ये सब का सब, सारा का सारा, पूरा का पूरा केवल महाचिदाकाश है, उसमें अलग दूसरा कोई नहीं, अलग दूसरा कुछ भी नहीं है, सदा एक रूप ऑल इज वन. तो आप यहीं हल्के फूल हो जाएंगे, हड़वा फूल, समझ में आता है. मैंने आपको कोई भार नहीं रहेगा कि मैं ये हूँ, ये सब है, अलग अलग है, ये कुछ दिख रहा है, भला बुरा लग रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ पहले था, कुछ अभी है, कुछ बाद में होगा, क्या होगा क्या नहीं, क्या करूँ क्या ना, ये सब आपका अदृश्य हो जाएगा. कि माँ चिदाकाश है, फिर क्या विचार भी नहीं है, विचारवाणी शब्द अर्थ भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण सत्य, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण आनंद. ठीक नहीं क्या? आप जो परम सत्य है, पहले आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये जीव हूँ, ये सब जीव है, ये सब पदार्थ है, ये सब संसार है, ये सब अनेक और एक दूसरे से अलग अलग है, और ये हम है, ये दूसरे हैं, ये हमारा है, ये दूसरे का है, ऐसा सब भेद हुआ है. तो आप पहले सोचिए कि वास्तव में तो परम तत्व एक ही है. ये सारा का सारा पूरा महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है. तो आप उसमें आ जाइए. पहले ये सापेक्ष दृष्टि से बोला जाता है, मैं ये हूँ, ये मेरा दृश्य है. वैसे सब अलग अलग मैं है, और सब मैं का अलग अलग दृश्य है. तो उसमें हम है, उसके सापेक्ष हम बता रहे हैं कि भाई एक महाचिदाकाश ही है, अलग दूसरा कोई नहीं है, अलग दूसरा कुछ नहीं. सब रूप उसी का है, उसी में है, उसी से है, उसी का है, उससे अलग कोई नहीं, उससे दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं. ठीक नहीं क्या? पहले आपको जो पूर्ण स्वरूप है उसमें तो जागना ही पड़ेगा. आज यदि आप पूर्ण स्वरूप की ओर देखेंगे ही नहीं, और आप बस मैं ये हूँ और ये मैं मानता हूँ, मैं ये हूँ और ये मैं यही मानता हूँ, ऐसा पकड़ के रखेंगे तो आप कभी पूर्ण शांति नहीं पाएंगे. क्योंकि ये तो अस्थिर है. જે અસ્થિર છે એને પકડી રાખીએ એટલે કોઈ સ્થિર થવાય જ નહીં. અને જો સ્થિર સીધું જોઈ લઈએ, ઓળખી લઈએ, તો અસ્થિર દેખાય જ નહીં. स्वामी जी, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इवन बचपन से लेके मरने तक ये तो पूरा चेंज ही हो रहा, लेकिन मेरे में का एक पार्ट है जो पैदा होने से जब से मैं जानने लगा हूँ मरने तक वो स्थिर है. वो एक परमानेंट तत्व है. जो आपने जंक्शन की बात की, जंक्शन में रियलिटी भी है एंड अपीयरेंस भी है, एंड दैट कॉन्शियसनेस बस वो परमानेंट है अगर मैं उसके साथ रहूं तो. स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान, बस तो स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान है, वो अंदर का सच्चा और शुद्ध स्वरूप है, और वो स्थिर है. तो स्थिर है. हाँ, और बाकी का सब अस्थिर है. अस्थिर. तो अस्थिर को पकड़ के रखने से स्थिर नहीं हो सकते. तो अब वो सवाल वो और था कि- स्थिर को जान के स्थिर रहे कि हम तो स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान है, हम तो ये अस्थिर कोई वस्तु नहीं है, हमारे में ये कुछ नहीं है, हमारा स्वप्न है, तो वो हम में ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम में वो कुछ नहीं. हम तो स्वयं प्रकाश चैतन्य ज्ञान ही है, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन है या हमारा प्रोजेक्शन है, हमाરું આપણું પ્રતિબિંબ છે. સ્વપ્ન આપણું પ્રતિબિંબ છે, પ્રતિભાસ. અગર તો આપણું પ્રોજેક્શન પ્રક્ષેપ છે, તો એ આપણામાં કાંઈ નથી. તો આ પણ આપણા મહાચિદાકાશમાં આ પણ આપણું સ્વપ્ન છે, આપણું રિફ્લેક્શન છે, આપણું પ્રોજેક્શન છે. આ આપણામાં કાંઈ નથી અને આપણું મહાચિદાકાશ છે. ફિનિશ. नहीं क्लियर क्या? ये तो अपना रिफ्लेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये कुछ नहीं है. हम तो महाचिदाकाश है, हम में ये कुछ नहीं है. कैसे कुछ नहीं है? तो रमन बोलते सब मर जाते हैं. तो मर जाते इसलिए कुछ नहीं. આ કાંઈ નથી કેવી રીતે સિદ્ધ થાય કે જે આ બધું માનો છો દ્રશ્ય નાશવંત માટે કાંઈ નથી, અને એ અવિનાશી માટે છે. सापेक्ष भेद. स्वदेश और प्रदेश माने स्व माने आत्मा और पर माने अनात्मा, तो ऐसा भेद भी नहीं. स्व पर का भेद भी नहीं, क्योंकि केवल आत्मा केवल स्वरूप है. ऐसा यदि संकल्प कल्पना करेंगे तभी संकल्प का अधिष्ठान और अध्यस्थ, ऐसा जैसे बताया ना साक्षी और साक्ष्य, तो ऐसा भेद नहीं है.
क्योंकि महाचिदाकाश ही है सदा एक रूप पॉलिसवन, तो फिर ये साक्षी माने मैं देखने वाला, जानने वाला, और मैं अहम को जानता हूँ, मैं दृश्य को जानता हूँ। तो ये सब भेद कहाँ से शुरू होते हैं? केंद्र वर्तुल से, माने अहम और दृश्य, उसका जो हम जब भ्रम करते हैं तभी अंदर और बाहर का भेद होता है कि मैं स्वरूप में हूँ तो स्वदेश में हूँ, और मैं अहंकार और दृश्य का भ्रम में हूँ तो मैं परदेश में हूँ। लेकिन अहंकार और दृश्य का भ्रम है ही नहीं, इसलिए पूर्ण स्वरूप ही है। कैवल्य महाचिता का सहज पूर्ण स्वरूप, तो फिर स्व और पर का भेद भी नहीं है। अहम और दृश्य का भ्रम के सापेक्ष स्व और पर का भेद है, अंदर और बाहर का भेद। जो तरंग का आकार है उसके सापेक्ष अनंत महासागर के अंदर और जल के बाहर तरंग, लेकिन तरंग नहीं है तो सबका सब अनंत जल ही है, अनंत चैतन्य ही है। ખ્યાલ તમે અહમનો અને દ્રશ્યનો આકાર છે ને એના સાપેક્ષ અંદર ને બહાર છે, સ્વ અને પર છે, પણ અહમ ને દ્રશ્યનો આકાર ભેદ છે જ નહીં, આકાર ભ્રમ છે જ નહીં, એને અંદર બહાર છે જ નહીં, સદા એકરો પોલિસવાન पूर्ण चैतन्य। क्लियर नहीं? आप मैं नहीं रखे, मैं का भ्रम नहीं करेंगे ना तो दृश्य का भ्रम नहीं होगा, और मैं का भ्रम नहीं होगा ना, दोनों साइड क्लियर हो जाएगी। एक तरह बहिर्मुख वृत्ति से दृश्य का भ्रम भी नहीं होगा, और अधिष्ठान और अहम का भेद भी नहीं रहेगा, और महाचिदा का सदा एक रूप पॉलिसवन केवल पना रहेगा उसका। अहम का भ्रम करेंगे तो दृश्य का भ्रम भी साथ साथ उठेगा, और फिर अधिष्ठान का साक्षीपना का भी भेद साथ साथ उठेगा। लेकिन अहम का भ्रम नहीं करेंगे तो साक्षी भी अलग नहीं रहेगा, अपना स्वरूप जो है पूर्ण स्वरूप वही है, तो अलग साक्षी नहीं है, अलग अहम नहीं है, अलग दृश्य नहीं, तो अंदर बाहर नहीं है, स्वरूप और पर रूप, स्व और पर नहीं है, और ये सदा एक रूप है। क्लियर नहीं है? अहमનો ભ્રમ જો કરો ને તો તમારા પ્રશ્નોનો કોઈ એન્ડ જ નહીં આવે, અને જો અહમનો ભ્રમ ન કરો ને તો પૂર્ણ સ્વરૂપ તો પૂર્ણ સ્વરૂપ છે જ, પ્રથમથી છે, નવું આવતું નથી। ક્લિયર નથી? ખ્યાલ આવે તમને? આપ ક્લિયર તમને મળશે? मैं ऐसा करेंगे ना तो फिर एक महाचिदाकाश, फिर एक दृश्य, ऐसा फिर एक विठ्ठल, फिर एक संगमरवर। इनके तुल्य है, पूर्णवत है, ऐसा पता है? તણખલા તુલ્ય છે। ત્રણખલા तुल्य। હાર્ટ ઇઝ ધેન એમ ઓલ વર્લ્ડમાં છે, હૃદય છે તમારું નામ ઓપરું, કે જેનામાં કોઈ અભાવ નથી, જેનામાં કોઈ ઈચ્છા નથી, तो उसके आगे एक महान चक्रवर्ती भी तिनके तुल्य है, तिनका तुल्य। लेकिन ये नहीं स्वीकारते नहीं है, मानते नहीं। इसको प्रमाण कितना भी दो, मान ज्ञानी पुरुषों का प्रमाण दो, परम तत्ववेत्ता का, ब्रह्मवेत्ता का, आत्मवेत्ता का, लेकिन ये मानता नहीं। एक ही अंदर को आ साचू नहीं लगत। रमण के रामकृष्ण परमहंस के, आद्य शंकर के, ज्ञानेश्वर के, ऋषभदेव जड़ भरत के, अष्टावक्र के, याज्ञवल्क्य के, सप्तर्षियों के, सदाशिव सिद्ध काकोसन, सरस्वती, वाल्मीकि के, व्यास के, कपिल के, सनकादिक के, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार के, दत्तात्रेय के, तो पण लागतुं केम नहीं? એને એમ જ લાગે છે કે હું પૈસાવાળો છું, મોટો છું, સુખી છું, બસ હું મોટો છું, બસ હું શેઠ છું, હું સાહેબ છું, એવું પણ લાગે છે એને। એમ આમ અંદર એમ થતું જ નથી કે આ કશું જ નથી, ખરેખર પરમાત્મા છે। બોલે છે પણ એ કેવી રીતે બોલે? બધું પરમાત્મા છે ને પોતે પરમાત્મા છે, અહમને પરમાત્मा के वो बोलता है गुजराती कि सब परमात्मा है और खुद परमात्मा है, लेकिन वो खुद किसको बोलता है? ये जो मैं अनात्मा को जो आत्मा माना है, मैं देह हूँ, इस अहंकार को परमात्मा हूँ। तुम्हें खबर पड़े भूल क्या नहीं? બધું પરમાત્મા છે, પોતે પરમાત્મા છે, ક્યાં બોલે છે? એટલે દેહ હું છું, એ અહંકાર ને પરમાત્મા કે બધાય मैनिपुलेट कर देते हैं। मैं जब मैनिफेस्ट हो जाए वो स्वयं वो अपने से प्रकाश करे तो मैनिपुलेशन चला जाता है, निकल जाता है, और ये यहाँ ये हो रहा है, वो है अंदर और अपने से प्रकाश रहा है। उसको बोलते हैं रमण, कोई बोलते हैं अनुग्रह, तो बोला ऊपर से नहीं आता है, अंदर से ही आता है अनुग्रह, और स्वयं प्रकाश से वही अनुग्रह है। वो आत्मा को छोड़ के जो भी शब्द है सब आत्मा में ले जाता है। पहले सबका जनरलाइजेशन मैं करेंगे, मैं का जनरलाइजेशन स्वरूप में करेंगे, है ना?
એટલે एकदम इजी, लेकिन ये पकड़ नहीं सकते कि उसके चक्कर अंदर चाल पकड़ के रखते हैं और सुनते हैं या पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। એટલે તમે આટલા વર્ષો જાઓ પણ છતાં તમારો જે હું દેહ છું એટલે હવે જો એમ કહીએ કે પરમાત્મા છે અને હું દેહ છું તો અનંત મહાસાગર છે અને એક પરપોટો છે, તો તમે અનંત મહાસાગરનું ગમે એટલું સાંભળો કે એ તમારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, આ પરપોટો તમારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી, તો પણ તમે બસ ના હું પરપોટો જ છું એ કેમ આગળ આવ્યા કરે? એટલે આ ઉઘાડ બરાબર નથી થતો ऐसा? उघाड़ बराबर नहीं हो रहा है, प्रकाश बराबर नहीं हो रहा है। वो बोले मैं बबल हूँ बस, मैं अनंत महासागर, भले आप बोलो कितना भी, मैं सुनता हूँ, बोलूँगा भी मैं अनंत महासागर हूँ, लेकिन मैं बबल हूँ। बबल पना अपना पक्का रखेंगे। बबल એટલે બુલબુલા મને પરપોટો પરપોટાપણું પાકું રાખશે। એને એમ કહે કે ભાઈ તમે અનંત મહાસાગર છો, એટલે महाचिद आकाश चो, परमाकाश चो, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो है सब कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन सच्चिदानंद। तो कि नहीं, वो बोलेंगे सब परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, खुद परमात्मा है, फिर मैं ये देह हूँ, ये तो ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ, ऐसा है क्या? हाँ जी, मतलब इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये इतना जो एब्सोल्यूट की बात है वो ये माइंड या इंटेलेक्ट समझना चाहता है, और वो इंटेलेक्ट बुद्धि, हाँ, और वो बुद्धि अपने लेवल पे ही समझती है बार बार। वो क्या माइंड, पहले आप क्या बोले? माइंड एब्सोल्यूट जो इतना बड़ा हायर स्केल का जो है, हाँ। वो ये माइंड जो छोटी चीज है वो चाहती कि पहले मुझे समझ में आए, और जब वो उसको चीज समझ में आती वो इसमें ट्रांसलेट कर डालती। प्रॉब्लम वो होता है जब इसको बाईपास कर दे तो फिर एब्सोल्यूट के साथ एब्सोल्यूट ऑटोमेटिक मिल जाता, वो बीच में टैप होता ही नहीं। और वो टैप के थ्रू अगर वो टोटी के थ्रू पानी लाना तो बड़ा प्रॉब्लम है, वो उसके स्पीड से आएगा वो। વચમાં પોતાનું ક્ષુદ્ર હમને અધોળ બુદ્ધિ લાવે ને એટલે પેલું ત્યાં જ્યાં ક્લિયર થવાનું ત્યાં થઈ જ ન શકે। અને એ ક્ષુદ્ર હમને અધોળ બુદ્ધિ છે ને એ બધા અર્થો છે ને પરમાત્માના દેહમાં જ वो લઈ इसमें ट्रांसलेट कर डालती, देह में ले देह जाते में वो मैनिपुलेशन हुआ मैनिपुलेशन में ट्रांसलेट कर डालती। नहीं तो मैनिफेस्टेशन तैयारी है, ऐसा नहीं। फिर तो मैनिफेस्टेशन मैनिपुलेशन पे नहीं, फिर तो जो है सो पूर्ण ब्रह्म ट्रुथ एब्सोल्यूट। पर तो तुम्हारी मन बुद्धि परमात्मा से मोटी नहीं हुई, इतनी मन बुद्धि परमात्मा से बड़ी होगी। शब्द बड़े बड़े जान लेंगे, बोलेंगे, लेकिन वही એને તમારા ગુજરાતમાં એકેન્દ્રિય જ્ઞાન કહેવાય, એક દેશી એકેન્દ્રિય, સંકુચિતતા ને अनंत महासागर ऐसा लगता है कि वो संकोच पामता है, ऐसा चक्री तरंग फैन बुलबुला में संकोच पामता है, माने वो तो अनंत और विशाल भरपूर ही है, समान जल ही है, सब एक रस एक घन भरपूर पूर्ण, लेकिन फिर भी और निराकार, फिर भी ऐसा लगता है कि वो संकोच पामता है, चक्री तरंग फैन बुलबुल, लेकिन संकोच पामता नहीं, वो तो अनंत ही है और पूर्ण ही है। वैसे लगता है कि ये मन अहम देह दृश्य के चक्कर में ये माचिदा का संकोच पामता है, लेकिन वो तो अनंत पूर्ण ही है, वो संकोच पामता ही नहीं है। मन अहम देह दृश्य वहाँ ही नहीं। लेकिन इसको ये जितना भी डिस्क्रिमिनेशन दो उसका विवेक तो उसको क्लियर नहीं होता। તમને ખ્યાલ આવે? શું આવે? હું રાખી સોંપડો છે એટલે એને સંપૂર્ણ ઉગાડ થતો નહીં। હે હું રાખીને હું તો સાચું જ, રમણ તો એમ કે છે ઉપરથી કે સાચો હું છે એ જ પરમાત્મા છે। એ પણ तो हूँ तो नहीं नड़ता है, वो बोलते हैं हूँ राखीने, અહંકાર हूँ राखीने नहीं, हूँ को इसमें ले जाता है, हूँ को उसमें ले जाना चाहिए। हूँ तो हूँ नड़ता नहीं है, हूँ जहाँ है वहाँ उसको रखना है, हूँ जहाँ नहीं है वहाँ ले जाता है। हूँ को आत्मा, हूँ आत्मा है तो आत्मा रखना है, हूँ मन मैं तो हूँ देह छू ऐसा करता है। हूँ नहीं नड़ता है, हूँ तो सच्चा है, वो तो आत्मा है, हूँ कौन है? रमन को पूछा कि कैसे आत्मा, तो बोले सबके हृदय में मैं हूँ
वैसे आत्मा सबको जानता है, आत्मा सब में अपने को लेकिन मैं को मैनिपुलेट कहाँ करता है।